Hello, I'm Dr. Sayyida Rukshida. I'm a psychiatrist and I'm based in Mumbai, India. Welcome to Stars Meet Heroes. This is our small endeavor to bring about a few little smiles to our young warriors, our young doctors, our saviors who are out there fighting the COVID war for us. And it's our moment for us to help them a little bit, maybe lessen their burden and bring a few smiles. So let's begin with meeting our heroes. Maybe they want to start introducing themselves. Let's start with Rishabh. Rishabh, say hi. Hi everyone. My name is Rishabh Singh. I'm from Nair Hospital. I'm an intern here. Hi Rishabh. Hi. It's been 5 years in Mumbai, and I never imagined I'll see Mumbai like this. But yeah, it's exciting and saddening at the same time. Yes. Very, खासकर आप लोगों के लिए तो I think it's a very stressful time for all the people in the medical profession and all the health workers. So first of all, thank you to all of you, to the whole community, you guys, policemen, and all the Corona warriors, who are right there on the forefront. Thank you very much for keeping us safe. Hey. Hi, who's this? I can't see the picture. Yeah, hi. Sarvesh, you want to say hi? Yes. नमस्ते सुशांत जी और मेरे बाकी सब नमस्ते सर और मेरे बाकी सब कोविड वॉरियर्स को भी मेरा नमस्कार। और सर मैं सर्वेश अरकड़ी कूपर हॉस्पिटल से मैं कूपर हॉस्पिटल में इंटर्न हूँ, यहाँ पे काम कर रहा हूँ। एंड सर आज बहुत खुशी हो रही है कि मुझे मेरे चहेते कलाकार से मुलाकात मेरी हो रही है एंड आई थिंक ये पक्का हमारा जो उत्साह है उसको 100% डबल करने वाला है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग आउट द टाइम and meeting us. Thank you so much. My pleasure, Sarvesh. Divij? Yes. Hi, I'm Divij Mehta. I'm also an intern from Cooper Hospital. मैं currently एक गांव कामन करके गांव है वहाँ posted हूँ for the next 15 days. और I'm talking to you from there. But until then, I work in Seven Hills with my other interns from Cooper Hospital. And it's really nice talking to you. Inspired us in a lot. How are things in Kamangaon? कामनगांव में तो अभी 8 cases है, but it's pretty peaceful. भिवंडी के आसपास एक गांव है, so it's pretty not like Mumbai. Apart from that, we see the normal cases that we have usually. मैं एक दो बार शूटिंग किया उस तरफ मैंने. अच्छा, it's really beautiful. The mountains and yes. चलो ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कंट्रोल में रहे. Lekha, you want to say hello? Yes. Good evening, sir. My name is Lekha Devre. I am an intern in Nair Hospital right now. Lekha, sir, with an L. Yeah. Hi, Lekha. Yeah. Hi. And it's a pleasure to see you. Obviously, I mean, I never thought like the day would end like this, and it's just very surreal. Idea nahi tha koi. Ved Kumar is in my college, and he texts and he asks like, "Do you want to talk to the Sushant Singh from Savdhan India?" And I'm like, "Yes, why not?" So I'm like really happy to be a part of this conversation. Thank you. Thank you for joining. Pleasure. Thank you. वेद, अभी तुम्हारा नाम आया है तो तुम हेलो बोल ही दो हमको. आपकी तरह ये आदमी बार-बार 3-4 बार शक्ल दिख चुकी है, बेचारे को मौका नहीं मिलता है. नहीं, वेद की शक्ल नहीं दिखी अब तक. वेद, are you there? ये सावधान इंडिया के विलेन की तरह है, इसकी शक्ल एंड में दिखेगी. Okay. Pranay, you want to say hello? Hello everybody. Hello sir. Hi. I'm Dr. Pranay Khedkar from JJ Hospital. So first of all, I want to thank you for joining with us and motivating us with your interaction. And I want to thank Group. My pleasure. अरे आज मैं, since you guys are from JJ, थोड़ी देर पहले I read a tweet about there's a nurse in JJ who's COVID positive and she couldn't find a bed in the JJ hospital itself. So उनको private hospital की तलाश कर रहा है उनका बेटा. So I don't know if she got the bed or not. Actually, there's a separate ward for staff, but patient बहुत बढ़ गए, so maybe वो ward full हो गया and that's why she was shifted to the private hospital. Okay, चलो, I hope she recovers, भाई. Yes, का नाम तो मैं भी ध्यान नहीं है. All of you, भैया, I hope कि आप सब safe रहें. I hope all the PPE kits and everything आप सबको provide किया जा रहा है.
वही बोल सकते हैं। आप हम तो यहाँ से प्रे ही कर सकते हैं भाई। We can't help you in this fight except by staying at home and not being a spreader. So, and I would also like to thank Rukshida ma'am for making this happen. Thank you, ma'am. Okay, I'm going to make an announcement. No thanking Rukshida ma'am at all. Okay, I'm going to take it for granted. You guys love me, but no more Rukshida ma'am. Thank you. No business. Okay, Rajvi, quickly come say hello to all of us. Hi, sir. Hi, sir. Rajvi. Thank you for taking your time and effort, Sachi. It's a good thing that people are coming. No Stars problem. are supporting us. अरे मुझे कौन सा काम है घर पे बैठा अरे हूँ। फिर भी सबको time. I'm Rajvi and currently I'm interning at KM Hospital. KM, okay. Great. Sushant, you might want to know Rajvi just got back, took a quick, clean, healthy shower, and she's still dripping with her hair all wet, and she's talking to us. Wow, you just got back from duty. Yeah. कितने घंटे ड्यूटी किया राजवी? 12 घंटा। पूरा पीपी किट में पूरा रहना पड़ता है ना। तो हम तो अभी घर पे कुछ काम चल रहा था तो थोड़ी देर के लिए हम सब मास्क लगा के बैठे थे। And you know, my son and my wife, they started feeling suffocated in the mask. Just a normal surgical mask, you know, regular this kind of a mask. I can't imagine आप लोग कैसे पीपी किट में रहते हो। I've been following the news and seeing pictures, people getting dehydrated, बेहोश हो जाते हैं, and obviously you know you just taking off that kit or removing the mask or touching yourself is such a big danger that I was reading one doctor's account from America कि पानी की प्यास भी लगी तो सोचता है चल थोड़ी देर और रुक जाते हैं। पानी पिया तो फिर उसके बाद वॉशरूम जाना पड़ेगा। Just taking off the you know, even having lunch is like a dangerous thing. So भैया heads off है आप लोगों को। And I hope कि इसके बाद हमारी सारी गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जागें और पब्लिक हेल्थ केयर पर और इन्वेस्ट करें, you know, make our infrastructure much better. I hope so. Fingers crossed. तो चलिए भाई शुरू करो। बताओ और कोई रह गया इंट्रोडक्शन से? हाँ, बहुत सारे लोग बचे हैं, कतार में खड़े हैं। आज चलो। Hey, you want to say hello? Hi, yes, I'm Dr. Tanmay. I'm at the King Memorial Hospital. I just got done with my rotation in the triage and emergency area for COVID. So, abhi been shifted to ambulance transfers and everything. So it's really nice to have everybody together and आपसे बात करना भी बहुत मजा आ रहा है. My pleasure, Tanmay. Ashiana, are you there? Yeah. Hello. Hi. Hello. Hi, my name's Ashiana, and I'm an intern at JJ Hospital. I recently got done with my posting in medicine, and now I'm posted in OBGYN. It's a pleasure to meet all. Nice meeting you. Where are you from, Ashiana? Which I'm part? from Manipur, but I stay in Delhi. You're Manipuri? Yeah. My wife is Manipuri. Do you know that? Oh, I didn't know that. That's great. Yeah. She's a proper Meitei. Oh, okay. So nice. Yeah. Have you picked up any Manipuri phrases? Mayang. Oh, just Mayang. Yeah. The commonest one is probably, have you had food, which is chak charagra? Because everyone's obsessed with food in Manipur. You should know that. Yes. And fish. Fish. Oh, yeah. Jal ka phal, fish. Yeah. Nice meeting you, Ashiana. Nice meeting you too, sir. Shruti, I don't think we've said hi to you yet. Yes. Hi. I'm Shruti. I'm an intern at Hoover Hospital. Hi, sir. So अभी कहाँ से आप लोग कहाँ से? मैंने सबने इंट्रोडक्शन दिया, मैंने पूछा भी नहीं कौन कहाँ से है, किधर से? I am from Solapur, Maharashtra itself. I actually am coming from home. Like I had to go home for a medical emergency. My dad got admitted, so मुझे इधर काम करके I had to just rush and be back. Hi. What happened? What happened to your dad? He's diagnosed with leukemia. Leukemia? Oh. ICU. Yeah. He is admitted in an ICU में थे थोड़ी देर then so I had to visit him and now I'm back on board. From tomorrow maybe I'll be joining. Okay. Chalo, my prayers for his recovery. Yes, thank you so much.
We have I Ved here. Ved, have you said hello yet? Hello, Ved, are you there? Yeah, I think we have somebody more who has to say hello. I can't see your name. Whom did I miss? Yogesh. Yogesh, you want to say Yes, hi? yes, yes. Hi, sir. I am Dr. Yogesh from हाँ, Sion ये Hospital. योगेश है। ये शुरू से आप गेस्ट अपीयरेंस मार रहे हो, 3-4 बार मार चुके हो, अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। हाँ सर, हाँ एक्चुअली सर मैं साइन हॉस्पिटल में इंटर्न हूँ अभी मेरा आईसीयू का ड्यूटी पूरा हुआ, अभी वहां से मैं जस्ट आया हूँ। तो ये कन्वर्सेशन आपने हमें चांस दिया, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू। और नहीं कोई थैंक यू की बात नहीं। हाँ, अभी ये स्टार्ट हुआ है कोरोना, अभी हमारा जो इंटर्नशिप स्टार्ट हुआ है एज अभी हम फाइनल ईयर हमारा पास हुए एमबीबीएस का, उसके बाद हमें ये पैंडेमिक का पार्ट होने मिला। इसके लिए एक्चुअली ये हमारे लिए नया है, बिकॉज हम भी नए डॉक्टर है यहाँ पे, बट अच्छा लग रहा है, बट थोड़ा डर भी है, तो अभी चल रहा है। आई नो इट्स या आई थिंक ऐसा एक्सपीरियंस है जो किसी को भी नहीं मिलता है लाइफ टाइम में, और आप ये भी नहीं कह सकते कि औरों को मिले, ना ही मिले तो अच्छा है ये एक्सपीरियंस। हाँ, यस सर, यस। स्टे सेफ भाई। आप कहाँ से हो, किधर से हो? मैं नांदेड़ से हूँ, नांदेड़ महाराष्ट्र। नांदेड़, अच्छा, ओके, ठीक है। We have Shubham, I think, who just joined us. Shubham, you want to say hello? Yeah, hello sir. I'm Shubham Balange. I'm from Sion Hospital. I'm an intern. Hi Shubham, hi. Hello. So before I let you guys go, I really did want to say a few words about our star today. As you already know, he's such a humble, honest man. He's so eloquent. तो मैं ये चाहे आप हिंदी बुलवा लो, चाहे उर्दू बुलवा लो, हिंदुस्तानी बुलवा लो या इंग्लिश बुलवा लो, he's very, very eloquent. And it's very sweet of him and very nice of him to give us our time and spend with us. So now I'm going to just let you guys loose on each other and get to know each other and have fun. ग्रेट, चलो जी, ब्रिंग इट ऑन। क्या क्या पूछना है, किसी को क्या बात करनी है? सर सबसे पहला सवाल मैं करना चाहूंगा आपसे कि अभी तो बहुत कठिनाई का टाइम चल रहा है और सब टेंशन में है सब, और आपका तो डेली लाइफ भी मतलब शूटिंग लाइफ होता है, तो आपको भागदौड़ बहुत होती है। तो ऐसी एक मतलब आपकी सबसे मतलब मन के पास की हॉबी कौन सी कि आपको वो करके शांति मिलती कि हाँ ये किया अभी अच्छा लग रहा है? तो रोज आप मतलब क्या, हाँ सर, आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है? यार मेरी हॉबी सही बोलूं तो फिल्में देखना, वेब सीरीज देखना और या पढ़ना। अच्छी बुक पढ़ लूं, और खासकर अगर अच्छी कोई कविता या अच्छा शेर गजल पढ़ने को मिल जाए तो वो है। अच्छा म्यूजिक सुनने को मिल जाए तो मतलब इसी से रिलेटेड है भाई। संगीत हो, फिल्म हो, या अच्छी पेंटिंग कोई देखने को मिल जाए, तो वही सब हॉबीज है। और आजकल एक ऑब्सेशन है मेरा, सफाई। क्योंकि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है घर में सफाई की जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं दिन भर देखता रहता हूँ कहाँ फर्श पर बाल गिरा हुआ टूट गया तो मैं वैक्यूम क्लीनर लेके खड़ा हो जाता हूँ फौरन। दिवाली की सफाई जल्दी हो गई सर। हाँ, होली दिवाली सबकी सफाई हो गई भाई। अभी आप क्या करते हो सरफेश? आपकी क्या हॉबी है भाई, बताओ। टाइम तो अभी तो टाइम ही नहीं मिलता हॉबी का। हाँ सर, बट स्टिल मैं आगे मतलब हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर हूँ। और हाँ सर, और मैं जैसे मतलब टाइम में फ्रॉम द एज ऑफ 5 आई एम लर्निंग। अरे वाह, क्या सर, तो जब भी मुझे क्या सर सुनाओ। ओके, तो सर आपने ये गाना सुना होगा अभी बहुत रिसेंटली, तेरी मिट्टी, मतलब हम सबको पसंद है गाना, और अक्षय कुमार जी ने किया था पब्लिश, तो फिर वही गाता हूँ आपके लिए। यस यस प्लीज। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, बस इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ
मजबूर हुई जब दिल की दुआ, तो हमने दवा से काम लिया। जिस नब्ज को हमने थाम लिया, उस नब्ज को कभी ना रुकने दिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे कभी ना ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी, अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। आरज़ू, आरज़ू। थैंक क्या यू। बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे वाह, थैंक यू सो मजा आ मच, गया। थैंक यू। अभी तो स्केल का थोड़ा प्रॉब्लम था, बट ठीक है, मैंने स्पॉन्टेनियसली जो भी स्केल पिक किया वो ट्राई किया मैंने गाने का, तो आई होप कोई आपको नहीं, अच्छा अभी लगा यार होगा। इतने इतने स्ट्रेस में, इतने ड्यूटी करने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो तो चलता है, बट इट वाज वेरी नाइस। थैंक यू सर, थैंक यू होपफुली सो मच। कभी आपको हम किसी फिल्म में गाते हुए देखेंगे, होपफुली। थैंक यू सो मच सर, आई ट्राई माई बेस्ट। सर देंगे ना चांस तुम्हें? अरे पक्का, सर अरे के साथ अभी तो तो काम करने के सर लिए एनी टाइम। 6 महीने से तो सर भी घर पे बैठे हैं यार, अभी मैं कहाँ से चांस दूंगा। नहीं नहीं, पक्का पक्का सर, आपके लिए तो कभी भी हम गा सकते हैं। चलो ग्रेट, होपफुली, लुकिंग फॉरवर्ड। यस सर। सर आपका कौन सा मनपसंद गाना, अगर आपको कंफर्टेबल होगा तो आप भी सुना सकते हैं हमको। अरे नहीं, मैं बहुत बुरा गाता हूँ मेरे भाई, तो तुम्हारे गाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। फेवरेट गाने मेरे एक वो है यार, पुराने गाने, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा क्या दिल बात की है, बात ना, ये क्या आई बात थिंक है, क्या तलत महमूद जी ने गाया था। जी जी जी। वो है, और जिंदगी का साथ निभाता चला गया, दैट देवानंद वो साहब तो का सर, गाना। यस यस, वो तो एवरग्रीन गाना है। करेक्ट करेक्ट। बहुत अच्छा। तो कोई और कुछ पूछना चाहता है प्लीज? अरे लेखा देवरे लेफ्ट ऐसा लिख के है, क्यों लेखा नाराज हो गई, क्या हो गया नहीं लेखा? नहीं, वो नाराज क्यों हुई है, उसे ना कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, तो मैंने उसे कहा ठीक है छोड़, चले जाओ फिर वापस आ जाना। ओके जॉइन इज बैक। अच्छा। Sir, we've heard कि आप poetry अच्छी लिखते हो. Can you द्विज, recite हाँ। a poem of yours? ओहो, ऐसे तो एक पुरानी पोएम है, मैं सुना देता हूँ आपको यार, चलो। खुशी थोड़ी सी उधार ला दीजिए, खुशी थोड़ी सी उधार ला दीजिए, और जो खुशी बाहर नहीं मिलती तो मेरा हिस्सा कहाँ गया बता दीजिए। मात्र कहा भर है मैंने, आक्षेप नहीं है, आक्षेप मानते एलिगेशन, मात्र कहा भर है मैंने, आक्षेप नहीं है। फांस चूंकि मेरी है सो निकालूंगा भी मैं ही, आप तो बस इतना भर कीजिए कि जो मुझ पे कहीं नजर पड़े तो मुझे मेरा पता बता दीजिए। Wow, wow, amazing. Thank you, sir. थैंक यू। वाह। तो आप क्या करते हो भैया? अभी हॉबीज का चल रहा है, तो चलो सबकी मैं भी पूछ लेता हूँ। मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मैं भी लेता हूँ ना इंटरव्यू। क्या Sir, करते हो द्विज, hobbies. आपकी क्या हॉबी है? Sir, hobbies में I attend a lot of debates. तन्मय मेरे साथ जो है, we've been on opposite sides in a lot of debates. Nuance that is more. आपकी आवाज जा रही बीच Social में, मुझे समझ activism. नहीं आया। यू एंड तन्मय, क्या आप लोग साथ में कुछ करते हो, ऐसा बोले? हाँ हाँ सर, हम डिबेट्स में ज्यादा पार्टिसिपेट करते अच्छा, हैं। ओके ओके ओके, चलो वाह, वेरी गुड। तो एंड सर थोड़ा सोशल एक्टिविज्म ऑन द मेडिकल फ्रंट में आई पार्टिसिपेट, व्हिच इन द सेंस ऑफ IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। हाँ, तो उनमें भी आई पार्टिसिपेट, बट इट्स मेनली डिबेट्स एंड एलोक्यूशंस, मॉडल यूनाइटेड नेशंस, जिसमें मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। ओके ओके। करंटली जो मेंबर्स है ये ग्रुप के, वी आर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ इंटर्न्स। इट्स कॉल्ड द एसोसिएशन ऑफ स्टेट मेडिकल इंटर्न्स। अच्छा, ओके ओके। और ये जो सारे सर मेंबर्स है अभी ये ग्रुप पे, these are the ones who've taken an effort so that interns get timely paid in this pandemic. We get a raise in what we are paid currently. So all of us, Ved, Rishabh,
Tanmay, Pranay, all of us are a part of this association, and that is where we raise our voice for the interns, the medical interns who are working right now. चलो great, that's a job well done, very good. Because मैं भी एक association का भाई general secretary हूँ. मेरी जो Cine and TV Artist Association है, Center. I am the general secretary of that. So I know that how much it takes for a union to raise its voice and try to do some good for its members. So I'm glad that you have a nice working association. Yes, sir. So currently, sir, because of all our efforts, our pay was also raised. So we will be paid hopefully 50,000 a month until this until this pandemic exists. Yeah, Tanmay wanted to say something, I think. Yeah. At this point, since हम लोग उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं सर, आप उस एसोसिएशन के हेड हो, तो जो फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पे काफी अनसर्टेनिटी भी होती है हर पर्सन के लाइफ में अबाउट गेटिंग अ जॉब नेक्स्ट फिल्म के बाद. और जो आर्टिस्ट जो मेन स्क्रीन पे नहीं होते, जो बैकग्राउंड आर्टिस्ट होते हैं, अभी फिल्म इंडस्ट्री को काफी इफेक्ट हुआ है लॉकडाउन. So and then it's quite presumable कि for the foreseeable future ये affect होगा. So for these people who are out of employment वगैरह, is there any sort of programs which are going on? या फिर yes. We in fact I think we were one of the first associations which realized within a week of the lockdown, जब ये March end में शुरू हुआ lockdown, within a week we realized that eventually एक time आएगा जब हमें financial help अपने members को देनी पड़ेगी. क्योंकि तो हमारे यहाँ पेमेंट जो है ना, एक टेलीविजन में स्पेशली बड़ी स्टूपिड थिंग कॉल्ड 90 days. आफ्टर 90 days तो आप काम कर लेते हैं और टेलीकास्ट भी हो जाता है, उसके 90 days बाद पेमेंट अगर ईमानदार प्रोड्यूसर हुआ तो 90 days बाद पेमेंट मिल गया, नहीं तो 90 days का फिर 120 days और एक साल. एंड देन उसके बाद वो प्रोड्यूसर बोलता है कि भाई अब जो है आप काम करो, 50% पे सेटल कर लो. तो उस तरह का एक्सप्लॉयटेशन होता है बहुत हमारे यहाँ. सो जो लोग ऑलरेडी पेमेंट्स का इंतजार कर रहे थे, अगर उन्हें एक महीने भी घर पे बैठना पड़ा और पेमेंट नहीं मिला, so then we sent out a message to all our members. जो लोग तकलीफ में है वो लोग अपने बैंक अकाउंट वगैरह नंबर भेजें, and we started transferring funds to our members. Then डोनेशन अपील की तो from ऋतिक रोशन, शबाना जी, अक्षय कुमार, सलमान, बच्चन साहब, बहुत लोगों ने आके जाके डोनेशन भी दिया, रेशन डोनेट किया, हमारे वॉलंटियर्स के थ्रू रेशन भी पहुंचा रहे हैं. So we are trying our level best यार. So लगे हुए and उम्मीद करते हैं कि इस दौरान एटलीस्ट हमारा मेंबर कोई भी जो है भाई बदहाली में या भूख से ना जाए. हालांकि पीछे 1-2 एक्टर्स ने सुसाइड भी किया ड्यू टू डिप्रेशन, व्हिच इज वेरी सैड. सो वी आर उसके साथ साथ अभी हम जो है हमारे जो पैनल में काउंसलर्स हैं, साइकियाट्रिस्ट्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके नंबर्स भी सर्कुलेट कर रहे हैं अपने मेंबर्स को कि भाई अगर आप तकलीफ में हो, बात करना चाहते हो, जस्ट कॉल अप. These are all free services. So we're trying to give as much support as we can. Very and encouraging to hear that, sir. That's really nice. And additionally, so now जैसे मैंने बोला कि foreseeable future के लिए काफी possible नहीं लग रहा है बाहर के shoots या बड़े shoots वगैरह. So do you think कि art form थोड़ा सा teleport हो रहा है towards a more online single person based shooting, or is there some new art form which is coming up? हाँ यार, क्या है ना, क्रिएटिविटी ऐसी चीज है कि मुश्किल हालात में ज्यादा बेहतर आर्ट पैदा होती है. तो अभी लोग घर पे बैठ के शूट करना भी सीख रहे हैं. पीछे इनफैक्ट आई जस्ट सॉ इन साउथ अफ्रीका few actors got together and technicians and एक डेली सोप का फॉर्मेट लोगों ने सबने अपने घर पे रह के शूट भी किया. So those kind of things are happening. Stand-up comics are entertaining people. Videos लोग बना रहे हैं, TikTok का यूज कर रहे हैं. So outlet तो कहीं ना कहीं मिलेगा ही, सब लोग निकाल ही लेते हैं. And but yes, of course we are missing the shoots here. जो मिलते थे, एक यूनिट के साथ काम करना, इंटरेक्शन होना. But hopefully चलिए, अब कोविड तो है ही, उसके साथ जीना ही है, तो शुरू हो ही जाएगा. Would you say all these new platforms that have come up, like Netflix hai, Amazon Prime hai, etc., all these new platforms, have those affected the TV genre, the cables and everything? Would you like? It has. TV की ratings all over down गई हैं.
तो टेलीविजन के बजट्स जो हैं वो कम होने शुरू हो गए थे ऑलरेडी, बिकॉज हम हमारे यहाँ एक इसके लिए टर्म है कॉल्ड अपॉइंटमेंट व्यूइंग, एज इन एक फिक्स टाइम पर एक फिक्स चीज टेलीकास्ट होती है, तो आपको 9 बजे तो 9 बजे आएगा, आप उसको देखेंगे बैठ करके। तो इंटरनेट आ जाने की वजह से ये जो ऑनलाइन जितने प्लेटफॉर्म्स हैं अब मेरे हाथ में है, मेरी स्क्रीन मेरे हाथ में है, आई एम कैरिंग माई स्क्रीन, सो आई कैन वॉच एनीथिंग एनी टाइम। तो जो नया व्यूअर है, अनलेस दोज जो ओल्डर जनरेशन है, दोज आर एडिक्टेड टू दोज डेली सोप्स, वही बस वेट करते हैं उनका। नया व्यूअर अब टीवी को उसको वेट नहीं करता। सो धीरे धीरे टेलीविजन का भी जो है सप्लाई का मीडियम जो है ना वो इंटरनेट ही हो जाए। एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म से काम और बढ़ा है, नेटफ्लिक्स वगैरह से, एंड क्रिएटिव काम। ये तो सबको लगता था कि हम सास बहू के अलावा कुछ बना ही नहीं सकते इंडियन इंडस्ट्री जो है ना, बट नाउ पीपल रियलाइज दैट वी आर केपेबल ऑफ मेकिंग स्टफ व्हिच इज कंपेरेबल टू एनी इंटरनेशनल प्रोडक्शन। अच्छी अच्छी वेब सीरीज बन रही हैं, अच्छे टैलेंट को मौका मिल रहा है, तो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। हाँ सर, हेलो। Yeah, on the same lines, how do you feel about movies choosing online platforms for their release? ट्रिकी है भाई, देखो ऑब्वियसली कलेक्शंस तो इफेक्ट हो गया, बिकॉज वही मूवी अगर हॉल में आती, लोग टिकट खरीद के आते, तो वी आर टॉकिंग अबाउट 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, आई मीन देयर इज नो लिमिट। तो प्रोड्यूसर, एग्जिबिटर विल बी लूजिंग आउट मनी, बिकॉज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाहिर सी बात है नोबडी इज गोइंग टू गिव यू 300 करोड़ वन मूवी। But we have to understand that when a producer makes a movie, he takes money on finance, and interest is increasing with each passing month. He has to pay the technicians and everybody. और जल्दी सिनेमा हॉल तो नहीं खुलने वाले, we all know that. खुल भी जाएंगे तो how many of us will have the guts or stupidity to sit in a crowd for 2.5 hours, with same air circulating with the AC? It's too dangerous. तो इट इज अ कॉम्प्रोमाइज, बट वी हैव टू सर्वाइव। जो प्रोडक्ट बन चुका है, रेडी है, तो वो तो रिलीज हो ही होगा। कुछ एग्जिबिटर नाराज भी हुए थे, आइनॉक्स का बीच में कंट्रोवर्सी भी हुई थी। दे रोट अ वेरी वेरी आई थिंक idiotic letter, almost it was like threatening that these fair weather friends, we will do something against them। अरे फेयर वेदर क्या भाई, बुरा टाइम तो सबका ही चल रहा है, तुम्हारा भी चल रहा है, हमारा भी चल रहा है। दिस इज द वन वे आउट। लोग तो कमाए खाएं, सबकी रोजी रोटी तो बंद नहीं होनी चाहिए ना। So I've always admired the process you guys go into while acting. As actors, you observe a lot of people, get traits for them. So as an actor, how has this experience of lockdown been for you? What kind of psyche traits are you observing in people, and possibly reflect onto your future actings? अभी एक्चुअली तो direct observation is always a better way. So since human interaction, live human interaction तो हो नहीं रहा है, mostly आप social media पर ही देख रहे हैं चीजें, तो social media पर actually reality दिखती ही है। People are pretending to be, either they are pretending to be a great activist or great opposer of something or a great bhakt, or this is a false image. तो ज्यादा observation हो नहीं रहा है frankly। Right, sir. आसपास अपनी सोसाइटी में देख रहा हूँ कि मिडिल क्लास हमारी जो है खासकर कितनी इनसेंसिटिव, दैट आई एम ऑब्जर्विंग। बहुत कम लोग हैं जो फिक्र भी कर रहे हैं कि भाई जो हमारी सोसाइटी के सिक्योरिटी स्टाफ है, जो वॉचमैन है, वो किस हालत में रह रहे हैं, उनका क्या होगा। लाइक आई मीन इन माय रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स obviously lockdown हो गया, तो everybody is staying where they are. So all the watchmen, they were asked to stay in the building premises. शुरू में तो उनका खाना कहाँ से आया, आज चाय की दुकानें बंद हो गई, फिर my wife makes tea for them सुबह शाम, and अभी कल परसों कुछ इंसिडेंट हुआ है, apparently किसी ने शायद दारू वारू पी ली होगी रात को, तो suddenly some society people said कि अभी इन सबको बोलो कि अपने अपने घर जाएं and normal working hours। I spoke to the security staff last night, भैया ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि तुम नॉर्मल वर्किंग आवर, मतलब अभी तुम लोग जो खोली थी जहाँ रह रहे थे, तो वो कैसे जाओगे वहां पे? बोले सर वो तो छोड़ दिया हमने, किराया थोड़ी देते इतना, हम 60 दिन से इधर ही है, तो अभी हमको जाने को कह रहे, तो मतलब हम लोग को वापस गाँव ही जाना पड़ेगा।
I felt very bad यार कि मतलब आप सीधे 60 दिन किसी का काम लेते हो, आप एक्सप्लॉइट करते हो, जरा सी कोई गलती किसी एक ने की, आप सबको बोलते हो सड़क पे चले जाओ. So when I spoke to the society people, thankfully the human side prevailed and they agreed to allow them to stay. But insensitive हैं यार लोग. Right. वो देख रहा हूँ मैं. So I think it runs across the systems. Like even in our hospital setup, we've seen that this particular moral crisis, I'd say, has unearthed a lot of cracks, a lot of fallacies in our system, which otherwise were kind of hidden but are now very conspicuous. We can see them outright. So I think one optimistic way of looking at it is that at least we can identify them now, and Absolutely. at the correct time we can alter There's it. always a silver lining, right? The only way to look at things is that anything is that if it is broken, so good we came to know. Now we can fix it. Yes, sir. I feel like artist जो होता है वो कभी पैसों के लिए नहीं होता. He craves for his creativity to be, explored. So anything and everything, keeping a stand is your part of humanity that you're, आप रख रहे हो. But beyond that, on a professional level, that creativity inside you, that human inside you, वो जाग जाता है कहीं ना कहीं, I guess. And that is really, really, really nice of you. This तरीके से आपने stand लिया, because it is very tough for somebody to just go out of their zone and think and then be there for somebody. During this lockdown, जब जहाँ पे सब कुछ क्या है, the time is stopped and probably it is stopped because we all need to reconsider ourselves कि हम लोग, where do we stand as a person, as a human, what we can do for not just for ourselves but for others as well. I really like the way you are just taking a stand, and also जो आपने कहा regarding the artist, that's really commendable. Thank you. I'm really glad that my colleague. Please. Yeah, I'm really glad that my colleagues brought that up, because I honestly wanted to thank you for supporting such a movement, and even regarding the Me Too movement, I'm really glad that you spoke up. And I wish more people in positions of influence did the same. Hopefully things will change. दूसरों का इंतजार नहीं करना चाहिए. हमें ये भी नहीं पूछना चाहिए कि वो क्यों नहीं बोला, वो क्यों नहीं बोली. ठीक है, आज तो कल बोलेंगे. हमारी सोसाइटी है भी ऐसी. क्या एक इशू कोई उठाते हैं, उसके बाद जितना बड़ा सेलिब्रिटी है उसके लिए मुश्किलें उतनी ज्यादा हो जाती है. लेट्स से एग्जांपल क्रिकेट का दूं, अगर धोनी ने रन नहीं बनाया या इंडिया मैच हार, तो कल तक जिसको फूलमाला पहना रहे थे उसके मारने पहुंच जाते हैं. आमिर खान ने नर्मदा इशू स्टैंड लिया था बहुत पहले, तो उसकी पोस्टर जला दिया गुजरात में, फिल्म ने रिलीज हुई, और एक फिल्म ना रिलीज होने से बहुत सारे लोग इफेक्ट. सो आई अंडरस्टैंड देयर पोजीशन. बड़े स्टार्स उठाना भी चाहे आवाज, और उनके साथ इतने सारे करियर्स जुड़े हैं ना, इतने सारे लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है कि वो रुक जाते हैं बेचारे. बट कहीं ना कहीं से और तरीकों से वो सपोर्ट करते हैं. सो डोंट वरी. बुरे हैं हालात, but there's a lot of hope also, especially from the youth. After a long time, we have politically enlightened youth in our country. Can I ask you something? हाँ जी. Sir, मतलब आप you've tried so much, you have so much fame in your life, you're such a huge celebrity. तो लेकिन आपको कभी ऐसे नहीं लगता that you ऐसे regret होता है कि इतना सारा fame है that you can't even walk ऐसे anonymous along the road, या फिर कैसे कभी रैंडम मॉल में शॉपिंग करने जाओ बिना किसी को पता चले, ये सब चीजें आप अपने फैमिली के साथ नहीं कर सकते, तो उसके बारे में कभी आपको ऐसे लगा है? बॉम्बे में इतनी मुश्किल नहीं होती है, बिकॉज लाइक आई मीन ऑब्वियसली आई एम नॉट सलमान खान एंड शाहरुख खान, दे कांट स्टेप आउट. पुअर गाइस, उनकी जिंदगी बर्बाद है इस मामले में. वो कुछ भी करें तो दे आर अंडर अ माइक्रोस्कोप ऑल द टाइम. मेरे लेवल के जितने एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, सो मुंबई पीपल आर क्वाइट यूज्ड टू सीइंग अस इन अ शॉपिंग मॉल और इन अ कार, इधर उधर जाते हुए, तो इतनी तंगी नहीं होती है. मैं तो सब्जी भी ले आता हूँ यार बाजार से, तो ऐसा कुछ नहीं है. बट हाँ, अगर आप मुंबई से बाहर जाते हैं, वेयर पीपल आर नॉट यूज्ड टू सीइंग सेलिब्रिटीज, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. एट टाइम्स इरिटेशन हो जाती है, कभी कभी थकान भी हो जाती है. ऐसे कभी हुआ है सर कि आप बहुत annoy हो गए because of some incident of fandom and at that moment you were like really annoyed at the other person?
and you probably thought कि क्या चल रहा है ये सब and why am I in this? हम लोग हांगकांग गए थे एंड वो मेरा बेटा उस समय बेटी बच्चे छोटे ही थे, तो उधर हम लोग गए थे, आई थिंक डिज्नीलैंड घूमने गए थे, हांगकांग में भी है। सो वहां पर घूम रहे थे और मैंने कंधे पर भी बच्चे को बिठाया हुआ था, बेटे को कंधे पर बैठाया हुआ था, बेटी साथ में चल रही थी। तो पूरा दिन थक के भीड़ भाड़ बार बार झूलों के लाइनों में खड़े होके, और वहाँ इंडियन टूरिस्ट भी बहुत सारा था। सुबह से मतलब आधा टाइम आप लाइन में खड़े हो कि लोग अरे अच्छा अच्छा अच्छा, तो शाम तक मैं बहुत तंग आ चुका था। तो देयर वाज सम 4D और 5D फिल्म शो, उसके बाहर अगेन एक क्यू थी, तब तक पस्त हो चुके थे। फिर कोई एक इंडियन दो स्टेप आगे खड़ा था, उसने मुड़ के देखा एंड सिर्फ पॉइंट ही किया था मेरी तरफ, एंड मैंने बहुत जोर से गुस्से में बोला, अरे नहीं यार, माय नेम इज विजय चौहान, ओके, आई जस्ट लुक लाइक या आई थिंक दैट्स द मोस्ट स्टूपिड थिंग आई हैव एवर डन। बाद में बहुत रिग्रेट हुआ मुझे कि बेचारा यार पहचान रहा था, खुशी तो हो रहा था ना, क्या उसको डांटने की जरूरत थी, बट हो जाता कभी कभी, एट टाइम्स यू गेट irritated because you want to just chill out with your family and not be the actor or the celebrity। ठीक है भाई, ये मेरा टाइम है, बट दैट्स ओके, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। अभी जैसे बोलते हैं ना कि जब फोटो नहीं खिंचाता कोई तो भी एक्टर परेशान होता है, कोई मुझे पहचान नहीं रहा, तो ज्यादा लोग पहचानने लगते हैं, तो फिर वो काला चश्मा लगा के और टोपी नीचे करके होठ पहन के ऐसे भरे, कोई पहचाने नहीं। तो एक्टर कभी किसी हालत में खुश नहीं रहता, उसको सब चाहिए। तो आई वुड लाइक टू आस्क कि अभी लॉकडाउन है तो लोगों के पास काफी टाइम है, इसलिए वो नई नई चीजें सीख रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट न्यू हॉबीज। तो इज देयर समथिंग लाइक दैट दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस जो आप कर रहे हो? भाई इधर टाइम ही नहीं मिलता, आई एम सॉरी, बट जिनके पास, या तो जो अकेले रहते हैं तो ज्यादा घर का काम नहीं करना पड़ता उनको, तो उनको बहुत टाइम मिल रहा होगा। अभी यहाँ 2 बच्चे हैं, 2 डॉग्स हैं, और ऑब्वियसली स्टाफ को हमने सबको छुट्टी दे दी, ऑब्वियसली इट्स अ पेड लीव, तो वो सब घर पे है, तो घर का जितना काम है, डॉग्स को घुमाना से लेकर के सफाई, खाना बनाना, एवरीथिंग वो मेरे और वाइफ के ऊपर है। तो सुबह से जो भूत बनता है हमारा ना, 6:30 बजे से उठ के, मैं उठते ही सीधे चाय से पहले सीधे डॉग्स को नीचे लेके जाता हूँ, उसके बाद आके चाय पिया, नाश्ता किया, उतना टाइम थोड़ा हमको मिलता है, तो न्यूज देख ली, फिर मैं सफाई में लगता हूँ, वाइफ बर्तन में और खाना बनाने में, फिर सफाई के बाद डस्टिंग, फिर जब तक डस्टिंग खत्म होती है पसीने पसीने होके, तब तक दोपहर का टाइम हो जाता है, तो डॉग्स को फिर से नीचे लेके जाना है, फिर नीचे लेके जाता हूँ, वापस आते आते फिर उनके पैर भी धोने होते हैं, बिकॉज कोरोना का है, तो यार उनके पैर भी धोते हैं ना, मतलब कुछ बहुत पुण्य किए होंगे हमने पिछले जन्म में, कुत्तों के दिन में 4-4 बार पाँव धोता हूँ मैं। तो हमें आपसे नहीं, आपकी फैमिली से थैंक यू बोलना चाहिए कि आपको काम से थोड़ी छुट्टी दे दी हमसे बात करने के लिए। हाँ नहीं, ये शाम का टाइम इतना मिल जाता है, तो इस टाइम पे मोस्टली अगर अभी ये मास्क का थोड़ा रेगुलेशन हो गया तो मेरी एक्सरसाइज बंद हो गई है, बिकॉज मास्क लगा के नीचे बिल्डिंग में दौड़ने वोड़ने में सफोकेशन होता है, वरना शाम को मैं थोड़ा एक्सरसाइज कर लेता था, वाइफ अपना डांस का रियाज करती है, शाम को उतना टाइम मिल जाता है। बट ऐसी कोई नई हॉबी बनाने का इतना लेजर टाइम भाई जिन लोगों को मिल रहा है, मैं उनके चरण स्पर्श करता हूँ कि नई हॉबी सीख ली, नई लैंग्वेज सीख ली, किधर से बाबा टाइम कैसे मिलता, कैसे आप लोगों को, प्लीज इसी पर ट्यूटोरियल बना दो, टाइम कैसे मिलता है। Sir, extending on that, how has the lockdown affected your life? Like life before lockdown and life after lockdown. How is it different and how would you compare that? बहुत बहुत फर्क है, लेकिन उतना भी नहीं है जितना लोग, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे, लोग पक गए हैं, बोर हो गए हैं, थकान हो जाती है कभी कभी घर का काम करते करते, यू जस्ट वांट टू रिलैक्स, मन करता है एक हॉलीडे मिल जाए, जाके होटल में मैं और बीवी बस पस्त हो जाए और खाना भी रेडीमेड मिले, सफाई करने की भी जरूरत नहीं पड़े, बस आराम करना है और कुछ नहीं। बट उसके अलावा सिर्फ दोस्तों से जो मिलना था, हफ्ते में एक दो बार 10 दिन में मिल लेते थे दोस्तों के साथ बैठ के रात को, हैव योर ड्रिंक्स एंड हैव सम लिसन टू सम म्यूजिक, वो इंटरेक्शन मिस कर रहे हैं। वरना अदरवाइज हम मोस्टली घर पे रहते थे, ऐसा कोई ज्यादा बाहर जाने का शौक नहीं, बाहर खाना खाने का शौक नहीं, तो वी आर नॉट मिसिंग मच, उतना बहुत ज्यादा फर्क नहीं लग रहा है, अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा हो गया, एक हॉलीडे चाहिए बस। तो सर मेरा एक सवाल था कि लॉकडाउन के बाद आपको पहली बात क्या करनी, कि आप कौन सी बात मिस कर रहे हो कि अरे यार ये करना है लॉकडाउन के बाद? हाँ, लॉकडाउन के बाद पहली बात आपको क्या करने का मन है? लॉकडाउन के बाद पहली बात, आई सिट विद फ्रेंड्स यार, दोस्तों के साथ बैठ के दारू पी जाएगी। बढ़िया बढ़िया सर।
क्योंकि द थिंग इज मतलब मुझे तो घर जाना है, क्योंकि 4 महीने से मैं यहीं पे अटका हूँ। हाँ, और द आप लोग थिंग तो इज यार मतलब मतलब यस सर, और कैसा है कि मतलब डॉक्टर जब से ऑफिशियली डॉक्टर बने तब से घर से मिले ही नहीं है। तो अभी बस लॉकडाउन के बाद तो घर पे जाने का मुझे है, जैसे ही खुलेगा पहले घर पे भागना है। आई नो ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड यार, मैं हॉस्टल में रहा हूँ अपनी यस ऑलमोस्ट सर। पूरी जिंदगी, आई कैन या अंडरस्टैंड व्हाट यू गाइस आर गोइंग थ्रू। यस, और मैं तो सर बहुत होमसिक हूँ, तो मुझे मतलब 10 दिन की ज्यादा आदत नहीं है। मोर देन 10 डेज आई कैन लिव इन हॉस्टल, बट अभी हाँ हाँ, 4 महीने हो गए, तो अभी पता नहीं कब जाने मिलेगा। बट इधर ऐसा है कि हाँ सर, घर बोले बोले। कहाँ पे घर? सर मेरा घर 40 गांव में है। इट इज इन जलगांव डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में ही है। अच्छा अच्छा, हाँ, दुलिया के पास में है। ओके ओके। कौन है घर में? सर घर में मॉम डैड है और भैया भाभी है, चारों के चारों डॉक्टर्स है, तो अरे वो भी उधर काम में लगे हैं सब। हम्म, वो उधर अपना हॉस्पिटल संभाल रहे हैं, तो अभी हम पांचों के पांचों अभी ड्यूटी में लगे हुए हैं। तो देखते हैं अभी कब खत्म होगा, है सबसे मिलना है बस एक बार। चलो वो फिंगर्स करा क्रॉस। के जाना। यस सर, आई होप कि जल्द से जल्द मिल जाए सबसे अभी। तो, तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। यस राजवी। या कि व्हाट डू यू थिंक, ये थोड़ा हटके है, मतलब थोड़ा डीप क्वेश्चन है कि हाँ, मतलब व्हाट इज योर पर्पस इन लाइफ, लाइक तो हैव यू थॉट अबाउट इट? माय पर्पस इन लाइफ, या नहीं, वेरी डीप। माय पर्पस इतना कोई पर्पस नहीं ढूंढता यार। मैं जो कर रहा हूँ, रोज जो कर रहा हूँ वही पर्पस है। इफ यू आर इन अ पोजिशन टू हेल्प पीपल, if you're in a position to change even the slightest of things around you in your society, I think that should be your purpose. अगर आसपास कुछ भी गलत है, आप उसको ठीक करने में मदद कर सकते हो। ठीक कर पाओ या नहीं कर पाओ, वो that doesn't matter. You might lose, but at least you should die with the satisfaction that you tried. That's my only purpose which I think about. बाकी तो planning, as they say, man plans and God laughs. वो सब सीख लिया है, कुछ नहीं होता प्लानिंग तो जैसा है चलने, ठीक है। राजवी, ये बड़ा साइकाइट्री वाला क्वेश्चन था, मैं तो बहुत प्रसन्न हो गई। हाँ, वेद, तुम कुछ बोलोगे? सर मेरा एक क्वेश्चन था। एक्चुअली अभी सायन हॉस्पिटल, उसके बाद केएम हॉस्पिटल, जो वीडियो आए थे कि डेड बॉडीज पेशेंट के साथ में ही रखे थे, उसके बाद बहुत सारे ऐसे न्यूज आ रहे थे कि मीडिया में बीएमसी अच्छे से काम नहीं कर रही है, बीएमसी में बहुत सारा प्रॉब्लम्स वगैरह है। प्रॉब्लम्स एट द एंड है, बट एज अ डॉक्टर हम डिमोरलाइज हो रहे। तो एज अ सोसाइटी आप क्या सोचते हैं कि ये सब वीडियोस वगैरह देखने के बाद की ये सच है कि नहीं है? बिकॉज बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये वीडियो देख के सच मान लेते हैं कि हॉस्पिटल में ऐसे ही हो रहा है, बट एज अ सोसाइटी कि आप लोग क्या सोचते हैं? मतलब नहीं भाई, मैं आई ट्राई नॉट टू रिएक्ट इमीडिएटली। आधी अधूरी बात सुन करके मैं रिएक्ट करना, अब शॉक तो लगता ही है यार आप जब इमीडिएटली देखते हैं वीडियो, बट वी हैव टू, ऑल ऑफ अस हैव टू अंडरस्टैंड कि ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन। यस, हम में से, हमारे सीनियर डॉक्टर से लेकर के किसी ने अपने लाइफ टाइम में ये सिचुएशन देखी नहीं है। सो कोई कितना भी कह ले कि वी आर ओवर प्रिपेयर्ड, nobody was over prepared, छोड़ दिए, nobody could have been prepared for this. yes, it was not possible to visualize कि क्या होने वाला है। दूसरे देशों को देख करके थोड़ा सीख सकते थे, अगर चूक गए, बट अभी चूक गए तो चूक गए, क्या करेंगे? हॉस्पिटल में इतने बेड है ही नहीं। हमने एज सोसाइटी, मैं इससे पहले भी, इवन बिफोर कोविड, मैं जहां भी जाता था लोगों से बात करने, मिलने, मैं उनको बोलता था कि हम इतने नालायक सोसाइटी कि हर चीज के लिए अभी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि कभी किसी ने जुडिशरी के खिलाफ आंदोलन किया? इतने सारे पेंडिंग केसेस हैं, करोड़ों पेंडिंग केसेस हैं जो आपको रोज इफेक्ट करते हैं। कभी हम बाहर निकले? आपके पास पैसे हैं तो आपका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, पैसे नहीं है तो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ेगा। हमने गवर्नमेंट के ऊपर कभी प्रेशर डाला कि भैया स्कूल अच्छे हो, हॉस्पिटल अच्छे हो, पैसे अच्छे, आपके पास पैसे हैं तो इलाज अच्छा मिलेगा, पैसे नहीं है तो घटिया इलाज मिलेगा? ये कहाँ का रूल है? हमने कभी आंदोलन किया निकल के? अपनी फैसिलिटीज मांगी? कभी नहीं मांगी ना, इसलिए ऐसा चलता रहा। वो दिखना ही था, ये मुंह पर आना चाहिए था, लोगों को दिखना चाहिए था कि हमारी कितनी गलती हुई है, और अब जागे और लोग मांगे। एंड
वो डेड बॉडीज दिखा देना, उस तरह के वीडियोस पूरा दिखाना चाहिए भाई कि वो क्यों है। बाद में एक डॉक्टर का कहीं मैंने इंटरव्यू भी था, वो भी देख रहा था, एनडीटीवी पर दिखाया कि प्रोसीजर इतना लंबा है कि भाई वो बॉडी को आप एक तो इमीडिएटली डिस्पोज नहीं कर सकते, मॉर्चरी भर चुकी है, कागजी कार्रवाई पूरी करनी है, तो आप कोई ऑप्शन नहीं, स्टाफ कम पड़ रहा है, वी ऑल नो दैट, पीपीई किट्स कम पड़ रहे हैं। तो आप सोचोगे कि सब कुछ ऐसा चले कि आपको लगे कि मतलब अरे वाह, प्राइवेट हॉस्पिटल जैसा जो है, या फिल्मों में जो हॉस्पिटल देखते हैं वैसा सब बिल्कुल सिस्टम से हो रहा है। अरे इटली, यूरोपियन कंट्रीज जिनका हमसे कहीं बेटर है, वो लोग नहीं संभाल पाए। हमारे यहाँ तो अभी जितना हुआ है, आई वाज एक्सपेक्टिंग इससे कहीं ज्यादा बुरा हो। तो महाराष्ट्र, आई थिंक द गवर्नमेंट, बीएमसी, डॉक्टर्स, एवरीबडी, I think are going beyond their call of duty. The police, they are doing a fantastic job. What we are dealing with is huge. And thankfully, we have an honest government जो टेस्ट और उसके रिजल्ट्स ऑनेस्टली बता रही है लोगों को, क्योंकि कोरोना रोक तो कोई नहीं सकता भाई, nobody can stop it. You can only try to deal with it. अगर आज नंबर्स ऑनेस्टली बताओगे, डेथ से लेकर के इन्फेक्शन, तो we will be mentally prepared for what is going to happen. Yes, tomorrow. आप आज बोलते रहो कम है हमने कंट्रोल कर लिया, कम है और डेटा छिपाते रहो, इट्स गोइंग टू ब्लास्ट इन योर फेस। आज नहीं तो कल इट्स गोइंग टू ब्लास्ट। सो डोंट लूज हार्ट भाई। वी हैव द मुंबईकर्स एंड द महाराष्ट्रियंस, वी हैव फुल फेथ इन व्हाट यू गाइस आर डूइंग, डोंट वरी। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी अभी जैसे आप देख रहे हैं कि मतलब celebs are using their fame probably in a very right way. I've seen some videos जहाँ पे वो how to wear a mask or how to like unmask yourself or how to wash your hands and all. तो सब लोग अपनी तरीके से कुछ ना कुछ कर रहे हैं. So what take do you have on this? And also sir कि कैसे होता है ना कि we belong to a society where okay we are quite a little more educated so that maybe हम लोगों को कुछ चीजें हैं जो थ्रू मीडिया या फिर इंटरनेट पता चल जाती है कि ये ऐसे करना ये नहीं करना. But उन लोगों का क्या जो blindly they go into they follow some people. So do you really believe that celebs should take an initiative in in educating people? हमारे यहाँ पे होता है ना information, education and communication. So how do you think we can contribute more towards this? ये तो just an extension to a question. So what do you think has WhatsApp University done to the healthcare of? Yes, of course. University has destroyed our country. फेक न्यूज जो इतना ना, पोलराइजेशन, जितनी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम जो दिख रही है अभी, वो उसकी वजह से इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है, इतने वो है, और आप कितना उससे इतना बड़ा नेटवर्क है, आप लड़ भी नहीं सकते. तो एट टाइम्स लगता है कि अभी गिव अप करने का मन भी करता है कि छोड़ दो. तो बट धीरे धीरे आई थिंक लोगों का माइंडसेट अभी बदल भी रहा है, धीरे धीरे समझ रहे हैं कि ये कितना नुकसान हो रहा है देश को. और अगर if you have a voice, you're a celebrity or a person in power, you have to use it. I would like to ask sir. Hello. Finally, wait sir. हाँ, actually अभी audible हो रहा हूँ मैं. Wait, ये सावधान विलेन क्लास में दिखा था, दिखा. सर एक्चुअली मेरा कुछ थोड़ा सा इस टॉपिक के ये है मतलब, और आपको कई बार पूछा होगा इंटरव्यूज में वगैरह. सर एक्चुअली मैं खुद काफी बड़ा मतलब शौक है मुझे थिएटर का. मैंने कॉलेज में भी कंटिन्यूस 5 साल से थिएटर कर रहा हूँ, और मैं स्ट्रीट प्ले, नुक्कड़ नाटक, हर टाइप का जो थिएटर है उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ. मुझे आपसे पूछना था कि आप एक्टिंग की इस फील्ड में मतलब कैसे आए, और आपको मतलब क्या लगता है कि एज ए एक्टर या फिर एज एक्टिंग एक ह्यूमन को कैसे डेवलप करती है, कैसे अफेक्ट करती है? भाई मैं भी थिएटर वाला ही हूँ यार. मैं बचपन से स्कूल में स्टेज पर ही रहा हूँ. फिर दिल्ली आकर के मैं क्रोडिमल कॉलेज में था, तो उनकी जो ड्रामेटिक सोसाइटी है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बेस्ट ड्रामेटिक सोसाइटी थी, वहां पे रहा. फाइनली आई मेट माय इब्राहिम अलकाजी साहब. उन्होंने अपनी एकेडमी शुरू की थी. तो अलकाजी साहब वाज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा फॉर 14 इयर्स. नसीरुद्दीन शाह, पूरी, ये सब लोग उनके ट्यूटलेज में निकले. उन्होंने एलएसडी के बाद अपनी लिमिटेड एकेडमी शुरू की 4 साल में उनके साथ. एंड वन थिंग व्हिच ही टॉट इज दैट the purpose of any art form is to make you a better person, a better human being. Right. आप क्योंकि मोस्टली क्राइसिस, तकलीफ, कॉन्फ्लिक्ट
चीजों के बारे में ही नाटक या नॉवल कोई भी लिखा जाता है। मतलब कॉमेडी अलग ठीक है, वो सब मोस्टली कॉन्फ्लिक्ट और सोसाइटी में क्या हो रहा है, समथिंग कुछ गलत तो सवाल उठाना है, उस पर लेकर के कहानी किताब सब लिखा जाता है। तो इसलिए लिखा जाता है ताकि आप उसको पढ़ करके सीख सके कि भाई इसको बेटरमेंट कैसे करना है। अगर ये इंसान गलत है, ये कैरेक्टर जो दिख रहा है जो विलेनस है, तो हमें बेटर कैसे बनना है। पर्पस ऑफ आर्ट इज टू मेक यू अ बेटर पर्सन। अगर आप वही नहीं हो पाते हो तो फिर देन यू आर नॉट एन आर्टिस्ट। मेरी नजर में आप कितने ग्रेट एक्टर हो, लोग मानते हो आपको, कितने बड़े स्टार, आप अच्छे इंसान नहीं बन पाए तो आप फेलियर हो। So addressing your massive show जिससे आप इतने पॉपुलर हुए हो, सावधान इंडिया, इसने इतना इम्पैक्ट क्रिएट किया है. Can you share one story which about the positive impact the show created, like one of the best positive stories? बहुत सारी है. स्पेसिफिक इंसिडेंट तो याद नहीं आता है, बट जब तक आप याद करते हैं मैं बोलती हूँ. हाँ, मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव हो गया क्योंकि मैं ना एक शो पर आई थी, वो एक एपिसोड पे, और मैंने जितना सारा काम किया इन 20 सालों में ना, वो एक तरफ, अरे आप सावधान इंडिया के एक एपिसोड में आई थी उनके साथ, वो एक तरफ, तो मैं मेरे लाइफ में पॉजिटिव था. Okay, now you go. हाँ, so somebody had messaged once on social media that like after getting inspired from Savdhan India, they actually solved a crime. उनके घर पे चोरी हुई थी कुछ, and that person sort of tracked the criminals and solved that crime, और वो चोरों को पकड़वाया उसने. Wow. Those kind of messages we got plenty, बहुत सारी ऐसी stories. And the best feeling is whenever I go out, जो लोग मिलते हैं सावधान इंडिया के जो व्यूअर्स हैं, वो सब अप्रिशिएट करते हैं, एक बार थैंक यू जरूर बोलते हैं. सर आपके शो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अवेयरनेस. I think that's the biggest positive impact we've had. My question is that ऋषभ का एक क्वेश्चन, ऋषभ ने अपना बारी द्विज को दे दिया था. So basically you had seen so many cases on the course of your show, and I think even Rukshida ma'am would agree that this invokes a sense of paranoia ki, when you're doing those sort of cases every time, you start questioning everything. Like when we come from wards, we are always questioning this is COVID, ye cheez saaf karo, wo cheez saaf karo. So what was your psyche? It does affect you, but I think end of the day it's better to be paranoid or more alert, because आप विक्टिम जरूरी नहीं कि हर कोई विक्टिम बनेगा अपनी जिंदगी में कभी, लेकिन जब बनते हैं आप तो छोटी सी गलती से ही बनते हैं, बड़ी गलती से नहीं बनता कोई भी विक्टिम. बहुत छोटी सी भूल होती है, आप किसी पर सडनली ट्रस्ट कर लेते हो अनजान आदमी पर, और वो कॉमन निकलता है. आप पूछना भूल जाते हो कि शेयरिंग कैब में बैठूं कि नहीं बैठूं, आप सोचना भूल जाते हो. आप नहीं रियलाइज करोगे कि ये सब साथी थे कि एक्चुअली पैसेंजर थे, नहीं मालूम. So it's better to be more alert and paranoid आज के टाइम में भाई, क्योंकि किसी के चेहरे पर तो लिखा नहीं है कौन क्या है. सर मेरा एक ये था क्वेश्चन. जैसे मैं आपकी काफी सारी मूवीज देखी, लेकिन उनमें से जो एक आपने कैरेक्टर प्ले किया था सुखदेव का इन द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, तो वो मुझे मतलब मेरे लाइफ को काफी इम्पैक्ट कर गई ये मूवी. मतलब मैंने मूवी कम से कम 15-20 बार देखी होगी, और स्पेशली आप और अजय देवगन सर की दोनों की जो एक्टिंग थी मुझे काफी अच्छी लगी. तो मतलब वो एक्चुअली एक मतलब जो सेंस था उसमें, जो पैट्रियटिज्म का और हर चीज का, वो इतना रियलिस्टिक था कि वो काफी इम्पैक्टफुल रही है मेरे लाइफ में. मैंने कई बार देखी भी है. तो आप कुछ इसके बारे में शेयर करना चाहेंगे, उस मूवी के बारे में कोई किस्सा या फिर कोई उसकी मेमोरी है? हाँ वो यार, that's my closest to my heart, that movie. तो फिल्म बहुत अच्छी बनी, बहुत अच्छी लिखी गई, एक्टर सब अच्छा काम किया सबने, डायरेक्टर राजकुमार संतोषी, everything perfect. A.R. Rahman's music, one of his best music, I think. And हम लोगों के लिए बहुत इमोशनल एक्सपीरियंस सबके लिए. हम लोग शूटिंग के टाइम भी सीन्स जब लिख करके आते थे, या सीन की जब तैयारी हो रही थी, तो कई बार सीन पढ़ के शूट होने से पहले ही हम लोगों की अपनी आंखों में आंसू आ जाते थे, बिकॉज वी न्यू कि यार ये रियल लोग हैं, ये सब कोई फेक इंसिडेंट नहीं है, फिक्शन नहीं है, ये सब हुआ एक्चुअली. And with young boys, they were 21, 22-year-old boys, hardly not even men. 20-21 साल के लड़के ही हुए यार, नौजवान,
उन लोगों ने इतना कुछ कर दिया और इतना कुछ सह लिया, तो वी यूज्ड टू गेट वेरी इमोशनल, रो पड़ते थे सेट पे कई बार। तो फिल्म तो आपको लगता है सर कि हुई आजकल की जो यूथ है, तो इट वाज लाइक सबके फैमिली अलग हो गई। हाँ सर आपको लगता है कि आजकल की जो यूथ है तो मतलब उसमें या मतलब हेलो हाँ हेलो, तो सर आपको ऐसा लगता है कि आजकल की जो यूथ है मतलब वो इतनी एम्बिशियस नहीं है या फिर क्या, तो आपको क्या लगता है, आप उनको क्या एड्रेस करना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, गलत। अभी वापस जो हमारा यूथ है ना, हमारे कंट्री का अभी वापस अवेयर हो गया है। ये जो जनरेशन है इस समय जो मैं देखता हूँ, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे इस वक्त सड़क पे लोगों को खाना खिला रहे हैं, लोगों के लिए फंड रेजिंग कर रहे हैं, सो आवर यूथ हैज अगेन कम टू द फोरफ्रंट एंड दे हैव स्टार्टेड थिंकिंग एंड वरिंग अबाउट द कंट्री कि किस डायरेक्शन में ले जाना है कंट्री को। सो वी आर, आवर फ्यूचर इज इन गुड हैंड्स। Chalo, on that positive note, can I please request Sushant to say something nice and cheerful and a lovely goodbye to all of us? अभी तक तो सब चीयरफुली कहा, सैड क्या बोला मैंने? एक लास्ट रिक्वेस्ट है। एक्चुअली माय मम्मा, मतलब कैसा था कि मम्मा को मैंने कॉल करके बोला कि वो जो सावधान इंडिया वाले हैं सुशांत करण की, लाइक अच्छा वो वाले जो हमेशा बोलते सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, that line of yours, oh my god, every person at our home जिसको भी पता चला, the only line they say is this, please I request you कि आप please can you just say that and maybe I record it. ठीक है। What's your mom's name? My mom's name is Varsha. वर्षा, ठीक है। Yes, my mom's name उन्हीं is के लिए बोल देता हूँ, रिकॉर्ड करके सुना देना, ठीक है? हाँ जी जरूर। हाय वर्षा जी, कैसी हैं आप? सब ठीक है ना? आप बेटी की चिंता मत करिए, बेटी एकदम ठीक है। आप वहाँ पे ठीक रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। Oh my god, thank you so much. Thank you so much. Thank you very much. हमने आपसे आधे घंटे की मोहलत मांगी थी और आपने हमारे साथ पूरा 1 घंटे से भी ज्यादा बिताया है, तो हम तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपसे फिर मुलाकात होगी और आप हमारे यंग जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए आप अच्छा सोचेंगे और अच्छा करेंगे। और मुझे बहुत ये यकीन है कि आज की शाम जो है बहुत यादगार रहेगी इन लोगों के लिए और इससे इनका जो जज्बा है, जो एहसास है खुद का ख्याल रखने की और दूसरों का ख्याल रखने की, वो बहुत ज्यादा और बुलंद होगा। थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। Good night. It was my pleasure. I enjoyed absolutely and hopefully एक बार ये लॉकडाउन खत्म होगा, थोड़ा नॉर्मल होगा, तो maybe all of us get to meet one day, you know, and maybe have Yes, sir. That'll be a dream, sir. या जाम टकराएंगे जो भी। तो सब मेरे साथ गाइए। मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। भारत माता की जय।